वरुण, क्या मतलब, you are happy, smiling? बीजेपी seems to be doing exceedingly well. तेलंगाना छोड़ करके बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बीजेपी seems to be doing well. Did you predict this? If you see my Twitter, I did predict this. Sorry. And if you see my Twitter, I had predicted that Yes. BJP is winning all the three states, and in Telangana, I was very clear that BJP has had to by changing Mr. Bandi to Mr. Reddy. And I was in Telangana a few months ago, even before the elections were announced. I was in the Congress headquarters where senior leaders, and I was having a chat with them, one of them or two of them, and they had mentioned this, that with Bandi going and Reddy coming in, Telangana has been served to the modern platter. And, talking about this MP, to be very specific, MP is a leher for BJP. And those leaders who are working on the ground for Bharatiya Janata Party in MP, I was very sure, even when almost parties, all the journalists over there had given it to Congress, Kamal Nath, I was very, very sure even then that yes, MP BJP is winning, because the Panna in MP were given a very big task of taking the voters to the polling booth, and that is where they succeeded. In Rajasthan, it was a known thing that Gehlot and his kind of politics that he was doing, the BJP captured on it. In Rajasthan, Gehlot was doing appeasement politics. The BJP also followed the same path of appeasement politics, and they have managed to get those seats. In Chhattisgarh, if I'm not wrong, what I was seeing, even Bhupesh Baghel is trailing Vijay Baghel, who had defeated Bhupesh Baghel in 2008 Chhattisgarh election. He is leading right now. So, and Om Mathur, who I had a very good chance of interacting in 2014 when he was handling the Bharatiya Janata Party election in charge, he has managed to consolidate a lot of votes, lot of castes over there who had gone to Congress in the previous election, back to BJP. So that is one reason why we are seeing a neck-to-neck fight in Chhattisgarh too. So in my opinion, whatever and whomsoever had spoken, they have managed to say the perfect thing to me right now, because that is what the trends are showing. So yes. अगर मध्य प्रदेश की आपने बात की है, तो उसी को अगर हम कंटिन्यू करें, लहर दिख रही है बिल्कुल। जो आंकड़े आए हैं 230 में से 137 पर बीजेपी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उनको मिल चुकी है, कांग्रेस 89 और अदर्स 4। लेकिन मेरा सवाल कुछ अलग है। मेरा सवाल ये था कि वहां पर क्या आप मानते हैं कि जो सेंट्रल बीजेपी है, उनको शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर इतना भरोसा नहीं था कि 3 सेंट्रल लीडर्स को लाना पड़ा? और क्या उसे एक वजह मानते हैं क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी और फैटिग फैक्टर जो है, चर्चा बार बार की जा रही थी, और अभी ये साफ नहीं है कि वहां पर मुख्यमंत्री अगर बनाने की बात की जाए तो किसे बनाया जाएगा? तो बीजेपी ने जो मल्टीपल केसेस को लाया था न्यूट्रलाइज करने एंटी इनकम्बेंसी, you think that work for the BJP in favor? क्योंकि आमतौर पर केवल कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान होता था, ये सारी चीजों से बचती दिखी। तो साथ ही साथ जो बात कर भी रहे थे, जो लाडली योजना की बात की गई, उससे भी काफी प्रभाव पड़ता नजर आया। तो what has been your analysis regarding this? देखिए सोहित, पहला चीज तो ये कि कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान ये नेता नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया। हर बार ये बात कही गई कि शिवराज सिंह चौहान इज लीडिंग दी पार्टी, लीडिंग दी कैंपेन। हिज नेम डिडंट क्रॉप इन द फर्स्ट फ्यू लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, बट हिज नेम वाज देयर। एंड अगर आप देखें, जो लोगों को जो भी एजेंसीज भी अपॉइंट किए गए थे मध्य प्रदेश में, दे वर नॉट सेंट्रली अपॉइंट। हाँ, सेंट्रल के आशीर्वाद से अपॉइंट की गई थी एजेंसीज, जो बाहर से आई थी जिन्होंने उनके लिए काम की, पर वो भी शिवराज सिंह चौहान के लिए ही काम कर रहे थे और शिवराज सिंह चौहान ही उनके नेता थे। यहाँ इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी की बात इस कारण भी नहीं आ रही क्योंकि वो आपके सामने नतीजे हैं कि इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाया, या एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए। लाडली once again and we'll see that we speak to him. But sir, ये देखना अहम होगा, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय को भी उनको उतारना पड़ा। कैलाश विजयवर्गीय को तो उस समय तक पता भी नहीं था कि वो चुनाव लड़ना चाहते भी नहीं थे, तो उनसे चुनाव लड़ाया गया। तो इसकी कुछ तो वजह होगी कि ये किया गया, जो मल्टीपल लोगों को लाना पड़ा।
और एंटी इनकम्बेंसी की जो बात अगर कर रहे हैं तो 2018 में तो वहां पर कांग्रेस आई थी सत्ता में, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से चीजें बदली। हम वरुण सिंह से वापस बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए व्यूअर्स के लिए कि शिवराज सिंह चौहान हैज कंटिन्यूअसली बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम 2005 टू 2018, और फिर 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के रिबेलियन के बाद वो वापस से मुख्यमंत्री बने थे। तो चुनाव का नेतृत्व उन्होंने नहीं किया था उस समय, बट इफ यू कंपेयर विद द सीट्स दैट हैज हैपेंड ओवर हियर, तो बीजेपी emerged as the single largest party with 114 seats, just 2 seats short of simple majority in 2018, और अभी बीजेपी के पास 140 है, तो 114 से 140 पर वो पहुंच गए हैं। ये देखना होगा कि इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का फैक्टर था या नहीं था, और लोगों का क्या फैक्टर था। दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जैसे कमिट किया गया था, तो इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? उन्हें तो जो मंत्रालय दिया गया उसमें भी कुछ है नहीं, तो उसमें ना उनके पास सरकार के पास कोई क्योंकि सरकार पिछली गिराने में उनका हाथ रहा है, तो उनको रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और ऐसा उनको लगा था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगली बार। और तो अब क्या होगा? तो ये आंकड़ों जब और आएगा तब दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है सर कि ट्राइबल सीट्स में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। पिछली बार आउट ऑफ टोटल 46 ट्राइबल सीट्स कांग्रेस वाज एबल टू विन इन 30, और बीजेपी केवल 16 में जीती थी। लेकिन ये आंकड़ों को देखकर अब ये देखना होगा कि ट्राइबल सीट्स में क्या प्रभाव रहा है। साथ ही साथ ओबीसी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो, क्योंकि वहां पर ट्राइबल फैक्टर और ओबीसी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 सीटों में 230 में से 48 सीट्स जो है वो ट्राइबल फैक्टर ट्राइबल्स के लिए रिजर्व है। 21% ऑफ स्टेट वोटर्स आर ट्राइबल। तो उन्होंने किस तरह वोट किया, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जल जंगल जमीन की बात करते आ रहे हैं, तो क्या उसका नॉर्थ बेल्ट में या मध्य प्रदेश में असर पड़ा नहीं पड़ा, इस पर भी नजर बनाए रखना जरूरी है। वरुण से जब तक हम जुड़ते हैं, हम दर्शकों को एक बार फिर से आंकड़े बता दें। मध्य प्रदेश 230 में से बीजेपी 141, वो आराम से लीड करते हुए नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान तो अब सड़कों पर घूमने लगे हैं, और एक तरीके से उनके कॉन्फिडेंस से पता चलता है कि वो फिर मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने। उनकी कोशिशें शुरू हो चुकी है। तो बीजेपी सरकार, लेकिन सिंधिया कहीं दिख नहीं रहे हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो भी उसी पार्टी से आते हैं जो पार्टी, और वो बड़े बड़े नाम है वहां पर सर। और ये आप अगर जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर महिलाओं के बीच में जाना शिवराज सिंह चौहान का, तो वो अपने आप को, और मेन चीज है कि सारी गोदी मीडिया में शिवराज जी का दिखाया जाना ये बिना केंद्र की सम्मति के हो नहीं सकता। तो अगर शिवराज सिंह चौहान आपके टीवी सीट पर है, तो उसका मतलब आप समझे कि एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री शायद वही हो। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस आगे आती हुई नजर आ रही है। 90 सीट्स में से 50 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है, बीजेपी 40 पर। अगर ये ऐसा ही माहौल बना रहता है तो भले अगर कांग्रेस 50 पर लीड करी है, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह से महत्वपूर्ण नेतृत्व के साथ वो चुनाव में उतरे थे, क्या वो महत्वपूर्ण नेतृत्व बनाने में कामयाब रहते हैं या नहीं। बीजेपी के पास जहां पर कम सीटें थी पिछली बार छत्तीसगढ़ में, तो वही बीजेपी के पास अब 40 सीट्स हैं और 46 का आंकड़ा चाहिए। और बीजेपी इस तरह के जादुई आंकड़े पाने में पहले भी हमने देखा है कि कितनी कामयाब रही है। वरुण, आप एक बार फिर से जुड़ गए हैं। हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी 40 पर है, कांग्रेस 50 पर है। हालांकि वहां पर तो नेताओं ने कहा था कि 35 के आगे आप ले आइए, फिर हम देख लेंगे। तो इस 40 सीट को आप जीत के तौर पर देखते हैं? मैं जो देख रहा हूं वहां पे इलेक्शन कमीशन के हिसाब से बीजेपी 31 पे है, कांग्रेस 28 पे है, और बाकी सारे चैनल्स भी मेरे सामने चालू हैं, तो वहां पर भी बीजेपी आगे है। आई एम श्योर छत्तीसगढ़ में बीजेपी इज विनिंग वेरी स्मार्टली, एंड उन्होंने जो भी चीजें थी, जो भी करना था उनको इलेक्शन जीतने के लिए, वो सही किया है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं रेणुका चौधरी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। तेलंगाना में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर कांग्रेस के और बीआरएस के जो कुछ नेता उनके तरफ आना चाहते हैं या उनकी बातचीत चालू है, जो एमएलए जीत रहे हैं उनके साथ उनकी बातचीत चालू है, तो ये हर पार्टी करती है। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि कोई जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है। देखिए, हम ये भूल जाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ती हैं क्योंकि उनको, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, बीजेपी हो, अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन इसके लड़ते हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट फॉर्म करना होता है, और गवर्नमेंट वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करना कि क्लास 2 की सिविक्स पॉलिटिक्स में पढ़ाई जाने वाली बुक में जो लिखा जाता है वो तरीके से अगर राजनीति होती है इस देश में, और आज भी उम्मीद करना, तो फिर हम भ्रम में और वहम में जी रहे हैं। दूसरी चीज,
एमपी में जो हम बात कर रहे हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक स्टेटमेंट देखा भी, एंड ही वाज देयर लाइव। उनके यहाँ से बहुत सारे इलेक्शन जो एनालिसिस करते हैं उन लोगों ने कहा था कि हम ग्वालियर से हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे रहेगी, पर वहां से भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। सो Scindia has worked well. Kamal Nath did well. I would say Rahul Gandhi couldn't do well. If Rahul Gandhi does well in Telangana and he fails in doing well in Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, it has to be very clear. One cannot be given credit for winning. He also has to be given credit for losses. So no, Varun, two things मैं आपसे पूछना चाहूंगा. Varun, Sujit here. We assume as journalists, all of us, let's consider all of us journalists now at the moment. As journalists, we have agreed to the fact that MLAs तोड़ना, parties तोड़ना, किसी भी तरह से कुछ भी कर इलेक्शन जीतना, ये एक नॉर्मल एक फैक्ट है. डेमोक्रेसी का धज्जिया उड़ाना. Do you think? I'm not being party specific, Varun. So that is not even my debate. I'm not that direction. I'm not taking. But I'm asking you: is this something that we have accepted? And following the constitution, going by certain laws and bylaws, is that become utopia? Like Raju said the other day, is that utopia now? Democracy is utopia. See, more than you, me, Raju, Sohit, and other journalists accepting it, it is more about the common public. The common public knows. We being a judge for almost 2 decades now, and I don't hide my in any way. I don't hide my leanings. People call me right-wing journalist. I'm a right-wing journalist. No issues in that. I'm not going to hide from that. But Sujit, and I'm not pointing it out to you, Sujit, or anyone, but I'm just saying, I go to public with that thing. Yes, I'm a right-wing journalist. I don't care about that. But, answering to your question, public is more smart. Public knows who to vote, who not to vote. Polarization works. Polarization के लिए भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है. We have seen polarization in Karnataka. We are seeing polarization working very well in favor of Congress in Telangana right now. I was on another channel right now a few moments ago with a spokesperson from Congress, and they have openly said that the Muslims have voted for them in Telangana. And I am also saying that yes, Muslim in mass for Congress in Telangana, the way they voted for them in Karnataka. So the voters also know whom to vote, whom not to vote, where their vote should go, and what will happen with a particular candidate. There are many times they know that गठजोड़ या तोड़जोड़ की जो राजनीति है वो होने वाली है. आपके और मेरे एक्सेप्टेंस से ज्यादा. हाँ सुजीत बोलिए ना. आई कांट हियर यू सुजीत. आई कांट हियर यू. आई कांट हियर यू सुजीत. आपके यहां से म्यूट किया गया है. वरुण, आपको मेरी आवाज अगर आ रही है? आई कैन हियर यू. अब आ रही है. हाँ सर. Sir, Varun, I'm actually talking about what you're saying too. See, you are talking about an MLA who has been elected by the voters. The voters casted their vote to an MLA who belonged to a particular party. That MLA, through whatever means, is taken away from that party and joins another party. You think this is the smartness of the voter? The voter, poor man, or woman who has gone and voted for that particular MLA, she or he has done their jobs. He was cheated. Democracy is cheated. And the fact is, today it has become the new normal. That's the question that I was. 5 years. देखिए, एक एमएलए की जिंदगी, वो राहत इंदौरी जी का बड़ा फेमस शेर था ना कि किराए का घर है, किसी के जाति मकान नहीं. तो 5 साल का ही टाइम मिलता है. अगर किसी एमएलए ने जनता को उल्लू बनाया है तो 5 साल बाद वो जनता भी उस एमएलए को उठा फेंकती है. तो हम फास्ट फूड के जमाने में ना सुजीत जी, आई हैव रियलाइज कि फास्ट फूड के जमाने में हम सब कुछ फास्ट चाहते हैं कि अरे अभी एमएलए ने तोड़ दिया या कहीं और चला गया तो हम उसको उठा के फेंक दे. ऐसे हो नहीं सकता. हमारे देश का जो संविधान है वो हर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को 5 साल का समय देता है. तो 5 साल के समय के बाद जब जनता के हाथ में वापस से ताकत आती है तो जिसने भी जिस तरीके का खंजर घोंपा होता है उसको उसी तरीके का जवाब मिलता है. बट टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस, टू बी Unfortunately, Varun, this is a good discussion because I'm telling you, Varun, unfortunately क्या होता है
कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्राविधान किए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लॉस को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। सी, मेरा प्रॉब्लम ये है वरुण कि समय डाउन द लाइन इलेक्शन जीतना, लाइक फॉर इंस्टेंस भारतीय जनता पार्टी 101 इन राजस्थान, 76 कांग्रेस, 101 सीट्स में वो जीत रहे हैं, तो उनका हक है जीतना। अगर वो आए, they come with 110 115 seats, उनका हक है वो चेयर, and they should be there. Same is the case with them in छत्तीसगढ़, sorry, in मध्य प्रदेश और in छत्तीसगढ़, हक है उनका, वो आएंगे, अच्छी बात है। लेकिन एक पार्टी को तोड़ना और फिर उसको एक क्या अपना पार्टी बनाना, एक गवर्नमेंट बनाना, ये बात आजकल हम नॉर्मली कहते हैं, क्योंकि आप आने से पहले भी, वरुण, आप आने से पहले हम लोग यही बात कर रहे थे कि अगर छत्तीसगढ़ में कुछ 35 के ऊपर आया तो सीनियर लीडर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी सेड दैट भाई तुम 35 के ऊपर लेके आओ, बाकी हम कर लेंगे, बिकॉज वो आई हैवंट हर्ड दैट सुजीत आई हैवंट हर्ड दैट 35 जो 35 वाली बात कर रहे हैं, ये मैंने पहली बार सोहित के मुंह से सुना, उसके पहले तक मैंने कहीं सुना नहीं था। ये एक आम तौर पे धारणा बन गई है कि आप मेजोरिटी से कुछ पीछे रहो तो शायद हो सकता है कि जिस तरीके से यहाँ मेजोरिटी के पीछे थी भारतीय जनता पार्टी इन महाराष्ट्र इन 2019, 3 party came together, one of which had contested elections with them and formed government. So similarly that is how the case has been. But I haven't heard about this 35 party thing, 35 voter thing.